Hello, my dear friends. So, today we will discuss about in Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit 1st Part 3rd Limit Test. In previous video we will discuss about introduction of inorganic chemistry and history of Indian pharmacopoeia and impurities, types of impurities, source of impurities. Then in this video we will discuss about limit test. So limit test, definition of limit test. So limit tests are quantitative or semi-quantitative tests designed to identify, control small quantity of impurities which are likely present in the substance. Tests being used to identify the impurity or tests being used to control the impurity. So limit test में हम क्या करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंसेस जिस सब्सटेंस होते हैं जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट उसके लिए कुछ टेस्ट कैरिड आउट करते हैं. उस टेस्ट को हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं एंड उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लिमिट टेस्ट यूज करते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन, तो लिमिट टेस्ट are quantitative or semi-quantitative tests designed to identify the controlled small quantity of impurities which are likely to be present in the substances. Then factors for the affecting the limit test. First factor, specificity of the test, then sensitivity, then control of personal error like analysis error, test which is no visible reaction, which there is no visible reaction, then comparison method and the quantitative determination. These factors are affect the limit test. So firstly, in this video, limit test have two. I will uploaded two videos in this limit test. In this first video, we will discuss about the limit test of chloride, limit test of sulphate, and modified limit test of chloride and modified limit test of sulphate. In the second video, we will discuss about the limit test of arsenic, limit test of heavy metals, limit test of iron. So, and this in this videos we will discuss the limit test of, firstly we will discuss the limit test of chloride. So the test is used to be the limit test the amount of chloride as an impurities in the inorganic substance. हेडिंग है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड. तो हम क्लोराइड एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक अननोन केमिकल सब्सटेंस होगा तो हम उसके अंदर देखेंगे कि कितने अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है, तो उसकी क्लोराइड की लिमिट टेस्ट देखेंगे, क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज चेक करेंगे. तो फर्स्टली प्रिंसिपल ऑफ दिस सब्सटेंसेस. तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form the silver chloride which appears as a solid particle or effluences in the solution. तो principle of this limit test, firstly जो भी क्लोराइड हमारा जो अननोन सब्सटेंस रहेगा, जो भी सॉल्युबल अननोन सब्सटेंस रहेगा, अगर उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो हमारा क्लोराइड क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में. तो अगर उसके अंदर क्लोराइड है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा एंड देन फॉर्म द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एंड दिस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच फॉर्म द व्हाइट ऑपेलेंसेस, व्हाइट प्रिसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा. तो उससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है या कितने अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है. दिस इज द रिएक्शंस लाइक क्लोराइड, जो भी अननोन सब्सटेंस में हमारा क्लोराइड रहा, सॉल्युबल क्लोराइड, देन सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, देन इट गिव द सिल्वर क्लोराइड एंड ये दिस इज अ नाइट्रोजनस ऑक्साइड. सो silver chloride is gives the opalescence white precipitate in this solution. Then this test, the silver chloride produces in the presence of dilute nitric acids make the solution turbid. The extent of turbidity depend upon the amount of chloride present in the substance is compared to the standard appliances
produced by the addition of silver nitrate as a standard solution having the known amount of chloride and the same volume of the dilute nitric acid as used in the test solution. देखो अगर हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो लिमिट टेस्ट में हमारा रहेगा कि टेस्ट सॉल्यूशन हम टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करेंगे तो हमें कंपैरिजन में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लगेगा। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि हमारा नोन अमाउंट जो भी जिसकी भी हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड लिमिट स्टैंडर्ड सब्सटेंस में नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा और वो उसके साथ हमने जितना यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे टेस्ट में उतना ही हम स्टैंडर्ड में ऐड करेंगे। तो स्टैंडर्ड में भी ऑपलेंसेस प्रोड्यूस होंगे और टेस्ट में भी ऑपलेंसेस प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से हम उसकी जो व्हाइट प्रेसिपिटेटेड होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं लिमिट टेस्ट में। जो सिल्वर क्लोराइड रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा। टेस्ट सोल्यूशन में जो टेस्ट रहेगा एक टेस्ट रहेगा हमारा और दूसरा रहेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड और टेस्ट में डिफरेंट जो चीज रहेगी वो रहेगी, टेस्ट में हमारा सैंपल रहेगा अननोन सैंपल जिसकी हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर द क्लोराइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, और जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा उसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस रहेगा, स्टैंडर्ड क्लोराइड हम उसके अंदर ऐड करेंगे। टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, so we will give the two Nestler cylinder and then it's label out. First one is the test sample and second is the standard solution, and we'll add the I'll add one by one chemical substances. First, specific weight of the compound is dissolved in the water or solution is prepared as the directed in the pharmacopoeia and transferred in the Nestler cylinder. जो भी हमारा अननोन सब्सटेंस रहेगा जिसकी हमें टेस्ट करनी है, उस टेस्ट करने के लिए पहले उसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और जो भी फार्माकोपिया में जो भी जितना भी मेंशन किया है, यहाँ पर 1 ml ले रहे हैं तो हम वहां पर भी 1 ml लेंगे। देन टेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लेंगे हम टेक 1 ml ऑफ 0.05845 percentage weight by volume solution of sodium chloride in Nestler cylinder। जिस Nestler cylinder पे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेबल किया है उसके अंदर हम लेंगे 1 ml ऑफ, प्रिपेयर करेंगे फर्स्टली 0.05845 percentage ऑफ weight by volume solution of the sodium chloride in Nestler cylinder। यहाँ पर हमारा अननोन सब्सटेंस लेंगे, जो भी हमारा अननोन सब्सटेंस जिसके हम टेस्ट कर रहे हैं कि जिसके हमें टेस्ट करके देखना है कि उसके अंदर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है क्या। ये हो गया टेस्ट और स्टैंडर्ड का। देन नेक्स्ट उसमें हम ऐड करेंगे 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। देन स्टैंडर्ड में भी हम सेम करेंगे 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। देन नेक्स्ट ऐड करेंगे हम उसके अंदर डाइल्यूट टू 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन द नेस्लर सिलेंडर। देन यहाँ पर भी हम डाइल्यूट करेंगे 50 ml ऑफ नेस्लर सिलेंडर, स्टैंडर्ड में भी हम वही करेंगे प्रोसीजर। देन हम यहाँ पर डालेंगे ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो हमारा क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस टेस्ट में हमने 1 ml डाला है तो हम स्टैंडर्ड में भी 1 ml ही डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देन कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स। देन साइड में रख देंगे हम 5 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द ऑपुलेंसेस और टर्बिडिटी। ऑब्जर्व करेंगे हम टर्बिडिटी कि स्टैंडर्ड में ज्यादा है या टेस्ट में ज्यादा है। अगर हमारे टेस्ट में टर्बिडिटी ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड तो हमारी जो भी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड रहेगी वो फेल रहेगी। Then also this procedure, chloride react with silver nitrate and it will be the give the silver chloride 1 ml of AgNO3 dilute H2O for the 50 ml, then 1 ml of HNO3, 10 ml of this sample। तो ये टेस्ट है नेस्लर सिलेंडर 2 में। देन ऑब्जर्वेशन, the opulences produced in the sample solution should not be greater than standard solution। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है क्योंकि हम उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमने नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड ऐड किया है, अगर उससे ज्यादा हमारा आ गया opulences तो हमारी टेस्ट फेल हो जाती है। In the opulences produces in the sample solution is less than the standard solution, the sample will be the pass the limit test of the chloride and the vice versa। अगर हमारा opulences जो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का जो ऑपुलेंसेस और जो टर्बिडिटी होती है अगर वो लेस आ गई कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो हमारी लिमिट टेस्ट पास होती है। अगर ज्यादा आ गई
जो भी टर्बिडिटी है टेस्ट सोल्यूशन की ज्यादा आ गई एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारी लिमिट टेस्ट जो होती है वो फेल हो जाती है। रीजन है कि हम क्यों ऐड करते हैं, जो भी हम केमिकल्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड करते हैं, उसके रीजन होते हैं। नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, जो भी नाइट्रिक एसिड हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन एसिडिक करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, एंड हेल्प टू सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट टू मेक द solution turbid at the end of the process. Then dilute HNO3 is insoluble in the silver chloride. Then pharmacopoeia does not prescribe any numerical value of the limit test of chloride, sulphate and iron because the limit test is based on the simple comparison of appliances and color test and standard prescribed according to the pharmacopoeia. जो भी हमारा फार्माकोपिया है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि इतने अमाउंट में होना चाहिए, बस वो हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के ऊपर बेसिस होता है, कोई न्यूमेरिकल अमाउंट में वहां पर कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, सल्फेट का और आयन का। बाकी जैसे कि हमारा आर्सेनिक का है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है कि इतना। Then in these types of limit tests, the extent of turbidity or opalescence or color produces in the influences by the presence of other impurity present in the substance and also the variations in time and method of performance of the test. Thus, the pharmacopoeia does not prescribe any numerical value of this test, limit test. The limit test involves simple comparison of turbidity or color with standard. These are the semi-quantitative reaction in the extent of impurities present can be estimated by the comparing visible reaction response of the test and standard. By this way, extent of reaction is readily determined by the direct comparison of the test solution with the standard. So, pharmacopoeia prefer comparison method. Then next is the limit test of sulphate. It is also similar to as the limit test of chloride. The sulphate limit test is designed to determine the allowable limit test of sulphate content in the sample. The principles limit test of sulphate is based on the reaction of soluble sulphate with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid to form the barium sulfates which appears as a solid particle turbidity in the solution. So these principles include soluble sulfate react with barium chloride in the presence of dilute HCl, then it forms the barium sulfate and this barium sulfate is formed the turbidity and this turbidity is compared to the standard one. So then comparison of turbidity is done with the standard turbidity obtained from the known amount of sulfate and the same volume of dilute hydrochloric acid have added to the both solution. The barium test solutions in the Indian pharmacopoeia has been replaced by the barium sulfate reagent is having, देखो जो भी हमारा बेरियम क्लोराइड है इंडियन फार्माकोपिया ने बेरियम क्लोराइड को रिप्लेस किया है बेरियम सल्फेट के साथ बिकॉज वो बेरियम जो सल्फेट होता है उसके अंदर बेरियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, सल्फेट फ्री अल्कोहल भी रहता है जो कि अवॉइड करता है सुपर सैचुरेशन एंड द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का भी सोल्यूशन होता है एंड पोटेशियम सल्फेट हैज बीन एडेड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, इट गॉट इट। देखो जो हमारा बेरियम क्लोराइड होता है जो कि हमारे सॉल्युबल सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, तो इंडियन फार्माकोपिया ने बेरियम क्लोराइड को रिप्लेस किया है बेरियम सल्फेट के साथ बिकॉज बेरियम सल्फेट में 3 रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड रहता है वो हमारे सॉल्युबल सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा, फिर उसके बाद सल्फेट फ्री अल्कोहल रहता है जो कि सुपर सैचुरेशन को अवॉइड करेगा एंड थर्ड वन इज अ पोटेशियम सल्फेट रहेगा जो कि हमारा सेंसिटिविटी, जो हमारी रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज करेगा। देन सेम टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सैंपल, टेक 2 नेस्लर सिलेंडर, देन labeled it, first one is a test sample and second one is a standard compound. Then test sample specific weight of compound is dissolved in water or solution is prepared direct in the pharmacopoeia and transferred in the Nestler cylinder
एंड हम स्टैंडर्ड में यही चीज डिफरेंस रहेगी, यहाँ पर ये रहेगी और यहाँ पर ये रहेगी, बाकी सारे केमिकल्स हमारे सेम रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो भी अननोन जिसकी सब्सटेंस हमें जिस केमिकल सब्सटेंस की हमें लिमिट टेस्ट लेनी है सल्फेट की वो लेंगे, और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लेंगे। तो स्टैंडर्ड में हम लेंगे टेक 1 ml of 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate in the Nestler cylinder. Then add 2 ml of dilute hydrochloric acid. Then स्टैंडर्ड में भी हम वही डायलूट नाइट्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे 2 ml से। डायलूट 50 सॉरी यहाँ पर भी हमारा 50 ml रहेगा और यहाँ पर भी हमारा 50 ml रहेगा। डायलूट 50 ml with distilled water in Nestler cylinder. Add 5 ml of barium sulfate and add 5 ml of barium sulfate reagent. देखो क्लोराइड को हमने रिप्लेस किया है बेरियम सल्फेट के साथ। Keep aside for 5 minutes. Keep aside for 5 minutes and turbidity offer, and this turbidity observe, opulence observe. साइड 5 मिनट की साइड के बाद हम उसकी टर्बिडिटी ऑब्जर्व करेंगे इन ब्लैक बैकग्राउंड। देन दिस द टर्बिडिटी कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड वन। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बेरियम क्लोराइड सल्फेट फ्री अल्कोहल और स्मॉल अमाउंट ऑफ द पोटेशियम सल्फेट, जो कि मैंने आपको पहले उसका रीजन बता दिया था। देन ऑब्जर्वेशन, the turbidity produced in the sample solution should not be greater than the standard solution. If the turbidity produced in the sample solution is less than the standard solution, the sample will be passed, the limit test will be the sulfate pass. And the vice versa, the turbidity produced in the sample solution is greater than the standard solution, the limit test is the fail. Then reason, we will add this chemicals like hydrochloric acids helps to make solution acidic. Potassium sulfate is used to increase the sensitivity of the test, giving ionic concentration in the reagent. Alcohol helps to prevent supersaturation and so produce more uniform appearances. Then next is the modified limit test of chloride. Firstly, we will discuss about the limit test of chloride and limit test of sulfate, and then modified limit test of chloride. तो इसमें क्या होगा, depending upon the nature of substance, some modifications have to be adopted for the preparation of the solution. क्लोराइड की जो हमने लिमिट टेस्ट की है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ऐड करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस नेचर। हम जो भी हम सब्सटेंस जिस सब्सटेंस की हम अगर फॉर एग्जांपल जो भी हमने सब्सटेंस यूज किया है अगर वो व्हाइट रहा तो उसकी ऑपलेंसेस से व्हाइट पीपीटी आएगा। अगर वो सब्सटेंस हमारा कलर्ड रहा तो फिर वो लिमिट अगर कलर्ड रहा तो स्टैंडर्ड में हमारा व्हाइट पीपीटी आएगा और कलर टेस्ट में हमारा कलर्ड आएगा, तो वो जो लिमिट टेस्ट होगा वो फेयर नहीं रहेगा हमारा। तो इसीलिए हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अगर हमारा अननोन सब्सटेंस कलर वाला रहा तो। The limit test of chloride based on the reaction between soluble chloride impurity present in the substance and silver nitrate solution to give the white precipitate or silver chloride. These white precipitate are insoluble in dilute nitric acid and hence give the turbidity or opulence in the test solution. ये principles है हमारा limit test of chloride का। The extent of the turbidity produced depends upon the amount of chloride present in the substance, which is compared with the standard opulence produced by the addition of silver nitrate to the standard solution, having the known amount of chloride and the same volume of dilute nitric acid used in the test solution. ठीक है, मतलब हम उसमें भी जो भी हमारा स्टैंडर्ड रहेगा उस स्टैंडर्ड में हम उसी अमाउंट में उतने ही जो टेस्ट में हम जितना सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, टेस्ट में हम जितना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे उतना ही हम स्टैंडर्ड में डालते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। If the turbidity developed in the sample is less than the standard turbidity, sample passes the limit test chloride. यह हमारा then अगर अभी नेक्स्ट रहा फॉर एग्जाम्पल हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट रहा तो पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स द पर्पल कलर in aqueous solution that interfere and comparison of the opulence or turbidity. Therefore, the aqueous solution must be first decolorized. The potassium permanganate is oxidizing agent while ethanol is reducing agent. तो फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल जो भी हम टेस्ट करते हैं क्लोराइड की तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके अंदर कलर आ गया तो हमारी जो भी लिमिट टेस्ट होगी वो मतलब उसमें एक एरर आ जाएगा।
तो फॉर एग्जांपल हमें पोटेशियम परमैंगनेट की लिमिट टेस्ट करनी है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट हमें एक्वायस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया तो वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। देन दिस पर्पल कलर प्रोड्यूस इज अफेक्ट योर टर्बिडिटी। देन तो फर्स्टली जो भी पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट रहता है उसको पहले हम डिक्लोराइज करते हैं एंड फिर उसके बाद हम उसकी चेक करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। When the potassium permanganate solution is treated with the ethanol in the presence of heat, तो फर्स्ट पोटेशियम पर मैग्नेट को हम ट्रीट करेंगे इथेनॉल। इथेनॉल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देन heat the redox reaction that is take place, and then potassium permanganate get reduces, then manganese oxide this filtered of the reactions colorless that is subjected प्रोसेस ऑफ लिमिट टेस्ट। देखो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा उसको हम रिएक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ, रिडॉक्स रिएक्शन, देन उस कलर्ड कंपाउंड इट गिव द कलरलेस कंपाउंड, फिर उस कलरलेस कंपाउंड की हम रिएक्शन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बेसिक रिएक्शन जो हमारा रहेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। देन इट विल फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड एंड दिस सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म द टर्बिडिटी ओप्लेंसेस एंड दिस ओप्लेंसेस इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन। सेम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नेस्लर सिलेंडर में हम वही डालेंगे। एट 10 ml ऑफ क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एट 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमें पहले ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। तो टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, डिजोल्व 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। फिर हम उसको हीट करेंगे वाटर बाथ में। Then slowly added 95% of ethanol and cool the solution. Then the dilute with 60 ml distilled water and filter. It gives the colorless solution and these solutions are used फॉर द टेस्ट सोल्यूशन। उसमें हम टेस्ट सोल्यूशन जब भी हम दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे तो नेस्लर सिलेंडर में जो हम टेस्ट सोल्यूशन ऐड करते हैं उसके अंदर उस टेस्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड में हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड रहेगा। फिर उसके बाद हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, दोनों में भी हम 50 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे दोनों में भी। एंड देन इसको 5 मिनट के लिए स्टैंड में रखेंगे एंड देन कंपेयर द टर्बिडिटी produces in test solution with respect to the standard solution and result and conclusion. Then observation and conclusion, if the intensity of turbidity is appears more than the solution than the standard, the conclusion of the impurities chloride is given sample over the limit as per the IP. The hence same sample do not pass the limit test. अगर हमारी जो turbidity है उस standard से ज़्यादा आ गई तो हमारी टेस्ट पास नहीं होगी। इफ द इंटेंसिटी ऑफ टर्बिडिटी appears to be the less or equal in the test solution, the standard solution, then conclusion is impurity of the chloride in given sample under the limit test as per the Indian Pharmacopoeia 1906. Hence the sample passes for the limit test for the chloride. ये हो गई हमारी modified limit test of chloride. then सेम रहेगी हमारी modified limit test of sulphate. वही रहेगा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट बेस्ड ऑन द सॉल्युबल सल्फेट। जो भी हमारी पहली लिमिट टेस्ट रहेगी, soluble sulphate react with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid is form the barium sulphate and this barium sulphate form the turbidity and this turbidity opulences with the compare with the standard one. Barium chloride is replaced with the barium sulphate will also the explain in the limit test of chloride. Then पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा, वहीं पर भी हम सेम रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ट्रीटेड विद द इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फिर उस पोटेशियम परमैंगनेट को हम कलरलेस करेंगे और उस कलरलेस सॉल्यूशन को हम लेंगे एज अ टेस्ट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम सेम उसमें चीज़ें वही ऐड करेंगे जैसे कि डाइलेक्ट्रिक एसिड, देन बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स, देन 50 ml डिस्टिल्ड वाटर। दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे, नेस्लर सिलेंडर के अंदर फर्स्ट को टेस्ट सॉल्यूशन, सेकेंड को स्टैंडर्ड, उसके अंदर टेस्ट सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है जो कि मैंने पहले आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में बताया था, वही सेम प्रोसीजर रहेगी। फिर वो टेस्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे 2 ml, फिर 50 ml वाटर ऐड करेंगे, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे एंड उसको कंपेयर करेंगे 5 मिनट के स्टैंड पे रखने के बाद। कंपेयर द टर्बिडिटी और अफ्लुएंसेस विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वन।
ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, अगर हमारी टर्बिडिटी मोर आ गई एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड तो हमारी लिमिट टेस्ट फेल। अगर हमारी टर्बिडिटी कम आ गई एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड तो हमारी लिमिट टेस्ट इज अ पास। तो ये हो गया हमारा पूरा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देन thank you. If you like this video, please like it, then share with your friends and subscribe my YouTube channel. If you have the PPT, if you have the notes for this regarding, so we will the link in description box. And the next video we will discuss about the limit test of arsenic, limit test of heavy metals and limit test of iron. So thank you. Keep watching.